Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Study Forum. My name is Munazza and by profession I am a teacher. I am currently serving in a private institute in Rawalpindi. The purpose of creating this channel is to facilitate students who are private, those students who miss their lectures, and also those who sometimes could not understand in the classroom due to various reasons. One of them we can say is ADHD disorder. In such cases, students are not able to understand. So online availability of such lectures will help them a lot. The book we have today is of grade 6 of geography, and that is of Punjab Textbook Board, and that book is the part of curriculum in most of the private or public institutes. Let's start with the book review. Total, the number of the chapters we have are 8. Chapter number 1 is Earth as a planet. Number 2 is globe map and their uses. Number 3 is Earth as a home for human being. Number 4 is rock. Number 5 is major land feature. Number 6 is land feature of Pakistan. Seventh one is world population, and the chapter that is last chapter of this book is human settlement. So let's begin our today's video in detail from the chapter number 1, that is Earth as a planet. So what you are going to learn from this book and from this chapter particularly, you will be able to describe the universe and its component. You will recognize the sun and star and the sources of energy for planet. You can also name other numbers of the solar system and describe their movement. You will be able to describe the shape and size of the earth. You will be able to explain the rotation of the earth on its axis and the formation of day and night. You will also able to explain the revolution of the earth and describe how seasons they are changed. You will be also able to describe the seasonal variation in the two hemispheres, in the southern and in the northern at a time. So let's begin with our first topic, that is universe and its components. यूनिवर्स क्या है, हमारी कायनात क्या है, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो है वो मुख्तलिफ थेरीज़ नज़रियात देते आए हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन और बहुत मशहूर हुआ है, जिस नज़रिए को बहुत पजीराई मिली है, वो है हमारा बिग बैंग थेरी. बिग बैंग थेरी के एडवोकेट जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि यूनिवर्स की तख्लीक हुई एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ मैसिव एक्सप्लोजन. और वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि यूनिवर्स जब कुछ भी नहीं बना था, कोई प्लैनेट्स नहीं थे, कोई हमारी अर्थ नहीं थी, कोई सोलर सिस्टम नहीं था, कोई गैलेक्सीज नहीं थी, उससे पहले जब कायनात में कुछ भी नहीं था लेकिन था, वो दैट वाज द पॉइंट, दैट वाज अ बॉल, स्मॉल बॉल. उस बॉल के अंदर जितना भी कायनात जो अब हमारे पास है प्लैनेट्स की फॉर्म में, गैलेक्सीज की फॉर्म में, वो सारा मैटर जो है वो उस बॉल के अंदर मौजूद था. विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो द बॉल बिगिन टू एक्सपेंड. और आप सोच सकते हैं कि जब पूरी कायनात उसके अंदर समाई हुई थी तो उसके अंदर कितना प्रेशर, उसके अंदर कितनी हीट और कितनी एनर्जी होगी. ड्यू टू दैट हीट एनर्जी व्हाट हैपेंड, दैट बॉल बिगिन टू एक्सपेंड एंड दैट रिजल्टेड इन मैसिव एक्सप्लोजन. जिसकी वजह से क्या हुआ, अ मैसिव एक्सप्लोजन अकर्ड, हैपेंड, एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो जो एक्सप्लोजन हुआ है और वो जो मैटर था, द हॉट मैटर, वो सारा स्प्रेड हो गया इन द यूनिवर्स. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, व्हेन द मैटर दैट बिगिंस टू कूल डाउन, वो प्लैनेट की शक्ल में आ गया, वो गैलेक्सीज की शक्ल में आ गया, वो मुख्तलिफ सितारों, एस्टेरॉइड्स की शक्ल में आ गया. ठीक है. एंड और वो कायनात अब जो हमारे पास है वो इस बिग बैंग थेरी के रिजल्ट में, इस बिग बैंग के रिजल्ट में. ठीक है. द यूनिवर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन. अब हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्स है क्या. यूनिवर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर. अगर हम सिंपल डेफिनेशन की तरफ देखते हैं जो इस किताब के अंदर मौजूद है, वो ये कहती है कि यूनिवर्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, यानी कि लाखों अनगिनत बेशुमार गैलेक्सीज हैं, इन पर मुश्तमिल है हमारी कायनात. और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो इनमें से एक है. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, गैसेज एंड क्लाउड ऑफ डस्ट. अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हमारे सोलर सिस्टम, हमारे निज़ाम शमसी के बारे में. अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमर्स द सन इज़ वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार अ मिल्की वे गैलेक्सी. बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो ये उनका ये ख्याल है कि सन जो है वो बहुत सारे जो बिलियंस ऑफ स्टार हैं उनमें से एक स्टार है मिल्की वे गैलेक्सी का. 8 planets they revolve around the sun. This is called the solar system. Then we will talk about Earth.
अर्थ के बारे में जी कह रहे हैं कि अवर अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम, इट इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट। सोलर सिस्टम उसका पार्ट अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो इस तरह से जो है ये लाइंस आपको पेज के अंदर नज़र आ रही हैं, वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, इसी हायरार्की को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, वो है सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा मुख्तसर सा पढ़ा है कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम द वर्ड दैट इज़ ड्राइव फ्राम द सोलर, द वर्ड दैट इज़ ड्राइव फ्राम द सन, यानी कि ऐसा निज़ाम कि जिसमें जो मेन एजेंट है, जिसके गिर्द पूरा निज़ाम गर्दिश कर रहा है, द होल सिस्टम दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द पॉइंट और अराउंड द मिड अराउंड द सेंटर विच इज़ द सन. Sun is at the center and the whole system is revolving around it. The solar system is composed of 8 planets which revolve around the sun in their respective orbit. This system originated about 5 billion years ago. Scientists they believe कि ये जो निज़ाम शमसी है, अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट जिसमें हम हैं, जो हमारा घर है, ये भी निज़ाम शमसी का हिस्सा है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो निज़ाम है ये 5 बिलियन ईयर्स अगो ये बना, इसका आगाज़ हुआ। When a cloud of gases and dust begin to spin, this gaseous material begin to cool down। जैसे ये सारी वही बात है जो हम पहले मैं बयान कर चुकी हूँ कि वो जो हॉट मैटर था, ठीक है, when it begin to cool down, वो सारा मुख्तलिफ शक्लों में आ गया, जैसे दैट अपीयर्ड इन द शेप ऑफ सोलर सिस्टम, इन द शेप ऑफ डिफरेंट गैलेक्सीज। ठीक है, इन द सेंटर ऑरिजिनेटेड द सन, बिल्कुल सेंटर में क्या बना, सन बना। और वाइल द सर्कुलेटिंग गैसेज एंड डस्ट, जब वो ठंडे हुए वो क्या बने, विद द पैसेज ऑफ द टाइम दे टुक द शेप ऑफ अ प्लैनेट विच बिगिन टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स हैं, इनके नाम यहाँ पे, सन एट द सेंटर, देन फर्स्ट प्लैनेट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम सन के बारे में पढ़ते हैं। सन क्या है? सन, it is believed that it is a bright star. It is comprised of hydrogen and helium gases. The temperature of its outer surface is about 6000 centigrades. It is a source of temperature and light for all the planet of the solar system. वो कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, सन इज़ अ ब्राइट स्टार, और सेकेंड क्या है, इसका टेम्परेचर दैट इज 6000 सेंटीग्रेड एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। इमेजिन जब सन डिसअपियर हो जाता है तो क्या नाइट कैम, और उस टाइम पे क्या आपके पास वो रोशनी होती है जो दिन के टाइम पे होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये इसी बात की अक्कासी है। उसके बाद बात करते हैं प्लैनेट। द प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट गेट लाइट एंड टेम्परेचर फ्रॉम द सन। वो कह रहे हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं अपने अपने मदार के अंदर, अपने अपने ऑर्बिट के अंदर, ये लाइट कहाँ से ले रहे हैं? दे आर गेटिंग लाइट फ्रॉम दी सन। ठीक है, our earth is also one of these planets which revolve around the sun in 365 days and 6 hours। वो कह रहे हमारी अर्थ जो है वो भी इन्हीं प्लानट, इन्हीं 8 प्लानट में से एक है जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। चलें अब लास्ट में एंड ऑफ दिस वीडियो जो हमने पढ़ा उसका रिव्यू करते हैं। जी आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा यूनिवर्स के बारे में। क्या कहा गया कि जो यूनिवर्स जो है दैट वाज formed about 15 to 20 billion years ago, और किसके रिजल्ट में? एज अ रिजल्ट ऑफ बिग बैंग। और ये बिग बैंग थ्योरी कहलाती है, जो ये जो नज़रिया है कि कायनात इस तरह से वजूद में आई। सेकंड हमने पढ़ा मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। देन वी टॉक्ड अबाउट सोलर सिस्टम के सन एट द सेंटर और बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो उसके गिर्द गर्दिश करें अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में। उसके बाद हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, इट्स द थर्ड प्लैनेट, ठीक है, or which is also revolving around the sun. And then we again talked about and we discussed in detail our solar system. Thank you so much.